Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing well. Welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we are starting with very important chapter, which is electricity. Right? So, what we study in electricity? We study charge, we study current, voltages, resistances, and then we solve different types of circuits. नाउ स्टूडेंट्स फाइंड कि ये वाले चैप्टर्स बहुत ट्रिकी होते हैं या बहुत मुश्किल होते हैं. अब प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स की बेस नहीं बनी हुई. ठीक है, मी बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं इसको आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखा सकता हूं. स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट फ्रॉम द बेसिक्स. ठीक है, सो अगर आपको इस चैप्टर को लर्न करना है तो आपको इन सारी चीजों को गो थ्रू करना है बाय स्टेप. अगर आप कहें कि एक दिन में सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी आपको आ जाए, in any case that is not possible, right? So my job is to teach you and your job is to do a lot of practice. So we will study electric current in this video. So let's start off with charge. Now what is charge? There are two types of charges, positive charge and negative charge. And generally, let's say we say that protons have positive charge. ठीक है, और किस एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब जरा आप सोचे कि एक वायर के अंदर क्या होता है. एक वायर के अंदर जनरली कॉपर होता है, सिल्वर होता है, विच इज मेटल, राइट? एंड मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग. Now, positively charged ions or negatively charged free electrons make metallic bonding because there is force of attraction between positive and negative charges, right? So what happens is free electrons are the charge carriers and they can flow within the metal. कब flow करेंगे? जब आप उसके क्रॉस voltage apply करेंगे, right? So this charge or this flow of charge with respect to time is called electric current. Now, this electron has negative charge and these electrons can flow within a conductor, right? So, what is charge on electron? Electron has a charge of 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulombs. 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulombs. Now this charge is also referred as elementary charge. ठीक है, elementary charge को symbol E से भी represent करते हैं. You don't have to memorize this value. I'm just telling for your information that the charge on one electron is very very small charge. आप imagine करें कि ये बहुत small value है. 1.6 into 10 raised to power minus 19 is very small charge. So every electron has a charge of minus 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulomb. In fact, Q is the symbol of charge and the SI unit of charge is coulombs, represented by symbol capital C. Right? Now, how many electrons will gather up to make a collective charge of 1 coulomb? So, number of electrons for charge to be 1 coulomb is equal to total charge, given charge which is 1 coulomb, divided by charge on a single electron, right? Which is 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulombs, right? So when you will solve this on your calculators, you will get this answer: 6.25 multiplied by 10 raised to power minus 10 raised to power 18 electrons. 6.25 into 10 raised to power 18 electrons, right? So this much electrons gather up to make a collective charge of 1 coulomb, or you can say that unit charge. ठीक है, so unit charge is 6.25 into 10 raised to power 18 electrons, which is a large number of electrons. So when these electrons will flow within a wire, that will make a current, right? So what is current? Let's write the definition of electric current. लिखे शाबाश. Current is
the rate of flow of charge, rate of flow of charge through a cross sectional area, rate of flow of charge through a cross sectional area, right? So it means के charge per unit time भी आप इसको लिख सकते हैं. The symbol for current is capital I and its SI unit is amperes. SI unit is amperes. It is represented by symbol capital A. Now you will clearly differentiate between the symbol of current and unit of current. Current is measured in amperes but it is represented by symbol I. जैसे mass का symbol M है और उसका unit kilograms. Right? Let's write down the formula of current. Current is equal to charge per unit time. ठीक है, or you can simply write in the form of symbols that I is equal to Q over T. ठीक है, so out of this equation if you want to make Q subject of the formula आप further ये भी लिख सकते हैं Q equals IT. Q equals IT, where Q is charge, right? Charge is measured in coulombs, I is electric current measured in amperes, and T is time, right? And time is strictly measured in seconds because the SI unit of time is seconds, not minutes or hours, right? So let's do a question. 6 ampere of current flows through a conductor in 4 minutes. Find total charge. Find total charge flown. ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया है? सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन Q equals IT. Straight away we will write this equation Q equals I multiplied by T. Now what is the value of current? Current is 6 amperes and time is 4 minutes. You have to convert this time in seconds. So आप इसको 60 से multiply करेंगे, right? So solve it on your calculators. 6 multiplied by 4 multiplied by 60. The answer is 1440. And what is the unit of charge? Coulombs, right? This is how you will find the value of charge. Moving on, let's talk about how the current flows in metals, right? Metals के अंदर current किस तरह से flow करता है? मैं आपके सामने एक metal का structure draw करता हूं. Let's suppose this is a wire. और इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, राइट? दीज आर द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल वायर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में शायद मूव ना कर रहे हो. कब तक? जब तक आप इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई ना करें. वोल्टेज क्या होता है? बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, इसका मतलब है वायर का एक एंड आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और वायर का दूसरा एंड आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. ऐसा करने पे ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन किस साइड पर मूव करेगा? दिस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन हैज व्हिच चार्ज? दिस हैज अ नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज किस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है? ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है. सो दैट्स व्हाई all of these electrons will start moving towards the positive terminal of battery, right? So this is the direction of flow of electrons.
ठीक है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली चार्ज। इसका मतलब ये है कि चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया एंड चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन, राइट? चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज? स्पेसिफिकली यहां पर लिखा हुआ है कि दिस चार्ज इज अ नेगेटिव चार्ज, राइट? बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर? बच्चों याद रखना, the direction of conventional current is from the positive terminal of the battery towards the negative terminal of the battery. Current is represented by symbol capital I, right? Its direction is from positive towards the negative terminal of battery. From positive terminal to the negative terminal of battery. अब ऐसा क्यों है? देखिए असल में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल, right? Why we are considering that conventional current is flowing towards the negative terminal of battery? तो जो इसके लिए याद रखें कि आपके पास जो टेस्ट चार्ज होता है या आपके पास जो रेफरेंस चार्ज है, रेफरेंस चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी आप पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस चार्ज कंसिडर करते हैं और करंट वाले चैप्टर में भी आपके पास जो रेफरेंस चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। अब जरा सोचें कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ना होते, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता, नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट विल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने किस साइड पर मूव करना था? तो इस पॉजिटिव चार्ज ने डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ मूव करना था। सो बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यही वाली डायरेक्शन विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। देखिए कन्वेंशन ले ली ना आपने, पॉजिटिव चार्ज को कन्वेंशनल चार्ज कंसिडर कर लिया, अब साइंटिस्ट ने उसी को कन्वेंशन रखना है ना कि इलेक्ट्रॉन्स को। सो ये वाली डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, राइट? तो याद रहे कि कन्वेंशनल करंट ऑलवेज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, राइट? सो अब मैं आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ इट इज टू अर्ली टू ड्रॉ अ सर्किट, लेकिन फिर भी हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दैट दिस इज बैटरी, ठीक है? यहां पे एक बल्ब ड्रॉ कर देते हैं, लैंप ड्रॉ कर देते हैं, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते लाइक दिस। अब जो आपने सेल ड्रॉ किया है, सेल हैज टू टर्मिनल्स, वन ऑफ द टर्मिनल इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अच्छा, अब पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? व्हाई दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल? बिकॉज दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? याद रखना कि ये चार्ज बैटरी के साथ इंटरनली मूव नहीं कर सकता कि बैटरी के अंदर ही अंदर से ये इसको बैलेंस आउट कर दे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान देयर इज ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होती है। सो करंट हैज ओनली वन पाथ। देखिए ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन। सो electrons will start to flow from the negative terminal towards the positive terminal of battery, right? So this is the direction of movement of electrons, right? But in which direction the conventional current will flow? याद रहे conventional current always flows from the positive terminal towards the negative terminal of battery. So this is the direction of conventional current, ठीक है? और ये करंट जाकर टर्मिनेट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। याद रहे कि थ्रू आउट दिस पाथ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी कांस्टेंट रहेगा बिकॉज करंट कहीं पर स्प्लिट नहीं हो रहा, राइट? ओके, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ करंट? लेट्स स्टडी टू टाइप्स ऑफ करंट. मुझे याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट. वन ऑफ द करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है, आप इसको डीसी कहते हैं, एंड द अदर टाइप ऑफ करंट इज ऑल्टरनेट करंट. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट करंट? बच्चों, डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है. दिस इज करंट इन एम्पेयर्स अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड्स अलोंग एक्स एक्सिस. Now direct current has fixed direction and fixed magnitude throughout. ठीक है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, राइट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. Let's suppose current is 4 amperes, so it will stay 4 amperes for the rest of the time. इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. And the other type of current is alternate current. Alternate current का दूसरा नाम है AC करंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, राइट? अब ऑल्टरनेट करंट कैसा होगा? वंस अगेन आई एम ड्रॉइंग करंट अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस. करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. ठीक है, मिनट्स भी लिख सकते हैं बट द एसआई यूनिट इज सेकेंड्स. अब ऑल्टरनेट करंट डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन जनरली जो हम ऑल्टरनेट करंट पढ़ेंगे आगे जाके, हमने एसी जनरेटर में भी यही वाला करंट प्रोड्यूस करवाना है. दैट इज लाइक दिस वेव शेप, राइट? दिस शेप इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइन वेव और अ साइनोसॉइडल. साइन वेव और साइनोसॉइडल, राइट? तो याद रहे कि डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट इज द वन विच हैज फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, और विच हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड. इसको आप डीसी भी कहते हैं. और ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट वो है जिसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. नाउ दिस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज, लेट्स अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू मस्ट बी -5. सो this much maximum current is called its amplitude, या इसको peak current भी कहते हैं, right? So in this case the value of amplitude is 5 amperes, right? Now what is the current measuring instrument? किस डिवाइस से करंट मेजर करेंगे? करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर. डीसी करंट को मेजर करने के लिए भी एमीटर यूज होगा और एसी करंट को मेजर करने के लिए भी एमीटर यूज होगा. इनफैक्ट अभी हम आगे आने वाली एक क्लास में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का याद रखेंगे. आपके सिलेबस में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स गिवन है. नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ एमीटर? जरा सोचें और बताएं. एमीटर एक सर्कल होता है जिसके दरमियान में कैपिटल ए लिखा होता है, राइट? सो एमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सर्कल और सेंटर में आप लिखेंगे एम्पेयर. दिस इज अ सिंबल फॉर एमीटर, ठीक है? याद रहे, एमीटर एनालॉग भी होता है, एमीटर डिजिटल भी होता है. आप जब देखते हैं आपके घरों में ज्यादातर डिजिटल एमीटर होता है, राइट? सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी वोल्टेज, potential difference, EMF and differences between them. So stay tuned. Thank you.